Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. Today's lecture is on graphics, application and techniques. I have given two lectures on graphics. I hope that you have watched both the lectures. उनको आप watch कीजिए. And this is the third lecture. तीनों lecture उनको watch कीजिए आप. And I think that after you watch these three lectures, फिर आप graphics पर question कर सकते हैं. लेकिन आपको तीनों lecture अच्छी तरह से watch करने हैं with patience और possibly maybe you have to watch it twice if you have time. Okay, let me start with application number one. These are basically the objectives or the problems on graphics. Let me take first example, but I will start with simple ones. This is the graph time versus position, and this is the graph. Here, let me say it is 30 meters, it is in meters, it is in seconds, and this is 10 seconds. It is origin. The question that I frame out of this graphics is, what is the velocity? What velocity you find from this graphics? It is a position time graph, and I already told you that from position time graph, you can find the slope, and that slope gives you the velocity. First of all, the velocity has to be constant because the slope is constant and the slope is negative. So velocity is, first of all, it is negative and constant. And what is the value of that magnitude of that velocity? That velocity is equal to, okay, theta is this, you find the slope of this line, which is a constant slope. Of course, the straight line is a perpendicular by base. Perpendicular is 30 minus 0 by base is 10 minus 0, that is 30 by 10, that is 3 magnitude meters per second. That is all. If I ask you what is the sign of velocity, the answer is negative because it has a negative slope because this angle is more than 90. And from 0 to 10 seconds, the position is positive, but from 10 seconds onwards, the position becomes negative. But that you can directly read from the graph. यहाँ से यहाँ position positive है, ये quadrant में position है, लेकिन 10 सेकंड से आगे position negative हो जाता है. So velocity negative है, लेकिन position positive भी है और negative भी है. इसका मतलब ये है कि velocity और position में relation नहीं है, velocity और change in position में relationship है. Okay, that is one. Let me go to the second. Second, let me make 3 to 4 graphs and I ask you which graph gives you the uniform velocity. That is my question. Time versus position. Okay, this is the graph. Time versus position. This is the graph. Time versus position. Even position. This is the graph. Time versus position. This is the graph. Which of these 4 graphs gives you constant velocity? Which of these graphs? Which graph gives constant velocity? Which graph gives you constant velocity? ये है हमारा क्वेश्चन. जरा देख लीजिए अच्छी तरह से. ये है ग्राफ. इन 4 ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कॉन्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है? जरा इस ग्राफ की तरफ देख लीजिए. पोजीशन टाइम ग्राफ कर्वीलिनियर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं. पोजीशन टाइम ग्राफ कर्वीलिनियर है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकता है. यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट है यहां तक, लेकिन यहां से वेलोसिटी नेगेटिव है. इस रीजन में पॉजिटिव वेलोसिटी है, कांस्टेंट जरूर, लेकिन यहां से भी यहां भी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, मतलब यहां पर वेलोसिटी चेंज हो गया. अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है वो ये है. दैट इज ऑल. मार्क इट वेल. Third. Okay, let me make third like this.
ओके, थर्ड को मैं ऐसे बनाता हूं, देखता हूं मैं आप क्या जवाब देंगे। टाइम वर्सेस ओके वेलोसिटी। आई विल रिमाइंड यू, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप है, उस ग्राफ का जो स्लोप है, दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो ऐसे मैं ग्राफ बनाता हूं, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिया। If I ask you what is the velocity at time t is equal to 0, that is this, 0 and 0. Velocity is 0 at t is equal to 0 because the graph starts from the origin. You want to find velocity at any time, you directly read the graph. अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि एक्सेलरेशन कैसे मैं फाइंड करूंगा, कहां पर? सपोज इट इज ए पॉइंट, इट इज बी पॉइंट, इट इज सी एंड इट इज डी. माय क्वेश्चन इज at which point DE, okay, at which point acceleration is maximum and at which point acceleration is minimum? That is the question. Which point, at which time, at which position or time, at which point on the graph acceleration is maximum? A, B, which point acceleration is okay minimum or zero कर दो. मिनिमम कहां है या जीरो कहां है एक्सेलरेशन इस ग्राफ? वी ऑलरेडी नो दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप. तो हर एक पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे उस पॉइंट पर टेंजेंट डालना होगा. अगर मैं यहां टेंजेंट डालूं ऐसे इनिशियल, तो इसका स्लोप थोड़ा है, तो ये इसका स्लोप थोड़ा बड़ा हो गया. इसका स्लोप देखो, ये देखो, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, इसका इस पॉइंट का स्लोप, इसका स्लोप और कम हो गया और इसका स्लोप जीरो हो गया. तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो स्लोप यहां जीरो है, तो यहां एक्सेलरेशन इस ई पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो है, मिनिमम एक्सेलरेशन यहां है, तो मैक्सिमम सी पर है, क्योंकि स्लोप यहां स्लोप थोड़ा है, इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया. यहां स्लोप मैक्सिमम है बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है. तो इस पॉइंट सी पर स्लोप मैक्सिमम है, देयरफॉर एक्सेलरेशन मैक्सिमम. एट पॉइंट सी acceleration is maximum and at point E acceleration is zero या minimum कहो या zero कहो. That's all. तो फिर से मैं बताता हूं, I have been repeatedly telling you from first lecture up to this one कि ये जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप है, दैट गिव्स यू एक्सेलरेशन. तो स्लोप फाइंड करना आप देख लीजिए, कहीं एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ढूंढना है तो वहां टेंजेंट डालकर उसका स्लोप निकालिए. तो ठीक है, अगर ऐसे है टेंजेंट तो स्लोप हो गया जीरो. जैसे ये टिल्ट होता शुरू हो जाएगा तो स्लोप ज्यादा बनता है. तो यहाँ स्लोप सबसे ज्यादा है, यहाँ स्लोप जीरो है और ऑरिजिन पर भी थोड़ा स्लोप है, ऑरिजिन पर भी एक्सेलरेशन है. Okay, now it is third. Let me go to the fourth. Fourth example. चलो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. Suppose a body is just released in gravity. Body is released in gravity. Earth's gravity, of course. Just released means velocity is equal to 0 at t is equal to 0. ये फॉल हो रहा है नीचे. तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? जब बॉडी को रिलीज करूंगा अंडर ग्रेविटी, तो इसका जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसे दिया है, ये ग्राफ दिया है ए, बी ये ग्राफ दिया है, सी ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है, हाँ ये ग्राफ दिया है. टाइम वर्सेस वेलोसिटी. इट इज टाइम वर्सेस, ओके पोजीशन कर दो इसको, डिस्प्लेसमेंट. इट इज टाइम वर्सेस अगेन वेलोसिटी. सो विच ऑफ द ग्राफ्स यू थिंक इज द करेक्ट ग्राफ?
फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू, व्हेन यू रिलीज अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, तो इनिशियल पॉइंट दिया है t इक्वल 0, वेलोसिटी 0, तो इनिशियल पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तो ये तो ऑरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट आपको दिया है t इक्वल 0, वेलोसिटी 0, दैट इज द पॉइंट दैट इज गिवन टू यू, सो यू नो द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। और इसी चीज को जहन में रखकर शायद 2 ग्राफ्स डिलीट हो जाएंगे, 2 ग्राफ्स को आप छोड़ सकते हो, और बाकी 2 ग्राफ ऐसे होंगे जो ऑरिजिन से स्टार्ट होंगे, ये और ये। दूसरी बात यह है कि acceleration under gravity is constant when it falls from a small height, तो acceleration due to gravity is taken to be constant। तो 2 चीजें आपके पास है, इनिशियल पॉइंट भी है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। तो उस सूरत में आप क्या कहोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, सो द ओनली वे आउट इज दिस। पर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि ग्राफ कुछ ऐसे है नीचे, तो यहां यू टेक अपवर्ड एज नेगेटिव, डाउनवर्ड एज पॉजिटिव, you are at will to choose this kind of option। तो डाउनवर्ड अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो दिस इज द ग्राफ, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स एंड यू हैव टेकन इट पॉजिटिव, एंड दिस इज द ग्राफ बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ थीटा इज लेस देन 90, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बट यू हैव टेकन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू योर ओन कन्वीनियंस। अच्छा, तो हुई एक बात ये, this is the correct graph of this real time situation, a body is released under gravity, initial point दिया है, and you know the velocity acceleration is constant and you have taken it positive, that is the to your own convenience। Okay, fifth point, these are few examples, few problems on graphics which will help you to solve other problems। अच्छा, तो फिफ्थ अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, टाइम वर्सेस ओके वेलोसिटी, तो कुछ मैं ऐसे बनाना चाहता हूं, ऐसे कुछ यूं 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 और यूं बनाया मैंने कुछ ऐसे। चलो ठीक, तो चलो इसको मैं कर दूंगा 40, इसको 10, 20, ओके 30, राइट। तो इसमें मैं क्या क्वेश्चन बना सकता हूं, एक्सेलरेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है, यहां भी एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन जो ये ट्रांजिशन पॉइंट है यहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, बिकॉज द बॉडी चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू नेगेटिव वैल्यू। तो इसको मैं रखूंगा -20, इसको -20 का ये मैं रखूंगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, इस रीजन में भी एक्सेलरेशन 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, और जो ट्रांजिशन पॉइंट्स है यहाँ एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, infinite, because velocity is changed from one value to another value within no time, so acceleration is highest at this point। अच्छा, so what are the questions that I can make out of this graph? Number 1, yes, number 1, okay, a displacement or distance in 30 seconds, b displacement in 30 seconds, displacement in 30 seconds। दो क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए, जरा बताए पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस s, एरिया अंडर द ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एरिया जमा ये एरिया प्लस दिस एरिया, सब एरिया को ऐड करना पड़ेगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी एरिया, अपर एरिया हो या लोअर एरिया हो, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब बॉडी आगे जा रही है डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, जब पीछे आ रहा है वापस नेगेटिव वेलोसिटी से, ये नेगेटिव वेलोसिटी का रीजन है, वापस आ रहा है तो डिस्टेंस ऐड ही हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज अप टू दिस डे आई हैव, so long I am living on this earth, I have traveled distances, maybe thousands of miles of distances I have traveled in my life।
tomorrow that distance will go up. If your car has a distance traveled 10,000 kilometers, समझ लो tomorrow it is distance covered will be more. मगर suppose if I am born somewhere and I die at the same place where I am born, the total displacement covered throughout my life will be 0. So that is the difference between displacement and distance. Distance ever goes on increasing. Okay, now distance is this area, that is okay, 10 into 40 plus 20, ये है, ये 10 है और ये 20 है, 10 into 20 प्लस ये 10 हो गया बेस और दिस डिस्टेंस इज अगेन 20, तो ये हो गया 400 प्लस 200 प्लस 200, वो हो गया 800 मीटर्स. अब बात यह है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अपर एरिया माइनस लोअर एरिया. ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा. तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना, हाउ मच इज दैट डिस्प्लेसमेंट. उसमें ये एरिया और ये एरिया, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो, ये और खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाले एरिया ये 2 है माइनस ये नीचे वाला है, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा ये एरिया. तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. Displacement D is equal to, that is this 10 into this 40, that is 400 meters, only 400 meters. So यहाँ ये इस एग्जाम्पल से क्लियर होना चाहिए डिस्टेंस कैसे निकालोगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे. That's all. Okay, let me go to the sixth problem, yeah, sixth application. Once you do it and then try to understand this, how we do things, it will be very easy for you to do it afterwards. Okay. Now, sixth point. अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, टाइम वर्सेस ओके, टाइम वर्सेस ओके पोजीशन, चलो ठीक है, पोजीशन ये एक है, ये एक का ग्राफ है, बॉडी ए का ग्राफ है, ये बॉडी बी का ग्राफ है, ये 30 डिग्री बनाता है और ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है. इसका स्लोप होगा 1030, इसका स्लोप होगा 1060. तो ये समझो इट इज ये है, दीज आर द टू रेसिंग कार्स. दिस कार हैज ए हैज अ ग्राफ ऑफ दिस, कार बी हैज अ ग्राफ ऑफ दिस. माय क्वेश्चन, very easy question, what is the ratio of velocities, what is the ratio of velocities, what is the ratio of velocities of car A and car B. easy question है, I made this question quite easy. तो क्या करेंगे आप, बताइए कार A का क्या है वेलोसिटी, स्लोप, इसका इस लाइन का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप, दैट इज 1060. बताइए कार बी का वेलोसिटी क्या है, दैट इज 1030. बताइए इनका रेशियो क्या है, ऐसे लाइन मार करके, तो क्या है रेशियो, वी ए बाई वी बी. ऊपर जो 1060 है दैट इज √3, नीचे जो 1030 है दैट इज 1/√3. ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 3 विल बी द आंसर. जरा इसको देख लो अच्छी तरह से. Okay, let me go to the seventh. Okay, seventh. कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. They try to confuse the student like this. ये है टाइम, नो दे मेक इट एक्स, दे मेक इट टाइम, और ये लाइन डाल दिया, ये ग्राफ है एक्स वर्सेस टाइम का, लेकिन वो एक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ प्लॉट करते हैं और टाइम को वर्टिकल एक्सिस के साथ. और ये है सपोज 45 डिग्री का एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल है. एंड
what you are asked for, find the velocity of the body. Having this graph, find the velocity of the body. Find the velocity of the body. तो क्या करेंगे आप? इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप dx by dt नहीं है, इसका स्लोप होगा dt by dx. Because after all, you see, if in general, okay, let me give I want to give a general rule. General rule is this. Have a look. First of all, okay, let me rub it off, and I want to make a general rule. General rule is like this. Have a look. अगर ये suppose x है, ये y है, चलो x मान लो, ये y मान लो, ये है ग्राफ. तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ वो होता है इन जनरल इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्टिकल कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, दैट इज dy by dx. ये होता है. इट्स अ जनरल रूल. और लगे हाथ अगर मैं आपको यह भी बताऊं कि एरिया क्या है इसके अंडर, इस ग्राफ के अंडर एरिया क्या है, उसका क्या एरिया जो है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस y वर्टिकल कोऑर्डिनेट ओवर पोजीशन या विद रिस्पेक्ट टू x. अगर ये 0 है, ये x है, ग्राफ का जो लिमिट्स है 0 to x. ये यहां याद रखने की बात है. अगर स्लोप इस कर्व की स्लोप की बात है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. अगर एरिया निकालने की बात है तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. बट दैट इज ऑल. यू स्टिक टू दिस रूल. अगर आप यहां x है, यहां t है, तो dx by dt इज द स्लोप. अगर यहां अब सपोज अगर यहां मैं मानूंगा m, यहां n फिजिकल क्वांटिटीज m एंड n, तो व्हाट इज द स्लोप by this rule या by this logic? That is dm by dn is the slope. And what is the area? Integration, okay, m dn. It is the area, it is the slope. That is all. Differentiation of the vertical coordinate with respect to horizontal coordinate, that is the slope. Integration of the vertical coordinate with respect to horizontal coordinate is the area. It may be anything, it may be anything. Now I will go to the problem. That has confused maybe, that may have confused you. Let me go to the objective or the problem of the application, you may call it. Let me do that. Have a look. अच्छी तरह से देख लो आप कैसे करेंगे. मुझे फिर से वेलोसिटी निकालना है. देख लो, ये है टाइम x, no position, it is time, and this is the graph, and this is 30 degrees. तो बताइए मुझे इसका जो स्लोप है किसके बराबर, क्या लिखूं इसके स्लोप के लिए? tan थीटा है, लेकिन यहां क्या लिखूंगा? dt डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू स्लोप tan थीटा, दैट इज 1/√3. लेट मी सपोज, मैंने पहले 45 का बनाया था, चलो चलेगा. लेकिन वेलोसिटी क्या है डेफिनेशन? वेलोसिटी का डेफिनेशन है dx by dt. That is not dt by dx. So that by the definition of velocity, it is 1/v. That is 1/√3. So v is equal to √3. Answer. We got it. So कभी कभी आप मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है. If you are quite familiar with ये t, ये x, ये t, ये x, so possibly you may be trapped and you may not be able to find the answer, but you have to be very careful. Eighth point. चलिए, 8th point. एट्थ एप्लीकेशन देख लीजिए. चलो बनाता हूं मैं ऐसे, फिर से वही t वर्सेस, ओके, चलो x ही सही. ये a ग्राफ है, ये a पर्सन a है और ये पर्सन A है और ये पर्सन B है. ये T0 यहां पर
और इस पॉइंट को लेकर के ये x0। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहता हूं, पर्सन ए पर्सन बी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। नंबर ए, विच पर्सन मूव्स फास्टर, विच पर्सन मूव्स फास्टर। ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा आप देख लो और मुझे बताओ, विच पर्सन मूव्स फास्टर। बी, विच पर्सन leaves the initial position earlier. C, why are the two persons meet? Why the two persons meet? D, which person overtakes, who overtakes the race? Who overtakes the race? ये 4 क्वेश्चन मैंने इसके बना दिए। जरा थोड़ा सा पॉज ले लो और देख लो इस चीज को। पहली बात है, विच पर्सन मूव्स फास्टर। हमें देखना है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप गिव्स द वेलोसिटी। दो में से किसका स्लोप ज्यादा है? तो दो में से किसका स्लोप ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है। सो बी मूव्स फास्टर। दूसरा, विच पर्सन हैज लेफ्ट द ओरिजिन और द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन अर्लियर। ये जो बी है, इट स्टार्ट्स हियर T1, ये T1 पर स्टार्ट करता है, लेकिन ए T=0 पर स्टार्ट करता है। सो ए स्टार्ट्स द जर्नी अर्लियर। ये जो ए पर्सन है, ये पहले ही घर से निकला। दोनों का घर एक ही जगह है, क्योंकि इट इज x0 और दिस इज ऑल्सो x0। ये T ज्यादा है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही पोजीशन पर है, ऑरिजिन दोनों का सेम है, लेकिन ए पहले ही निकला। और जो दूसरा है, उसकी घड़ी में T1 टाइम था, वो T1 टाइम पर घर से निकला। ये घर दोनों का एक ही है, x=0 पर। तो विच पर्सन लीव्स द इनिशियल पोजीशन अर्लियर? दैट इज ए लीव्स अर्लियर। लेकिन बी क्योंकि फास्टर है, बी मीट्स ए इन द वे। वो ए पहले ही चला गया था और कुछ टाइम के बाद बी चला गया, बट बी इज फास्टर और ए एक ही रास्ते पे चल रहे हैं दोनों। इट्स ए वन डायमेंशनल मोशन। बी इस ए को मीट करता है। वो मुझे आप बताइए कहां मीट करते हैं, और कहां मीट करते हैं और किस टाइम मीट करते हो। ये देखो, जहां वो ये दो स्ट्रेट लाइंस, दो ग्राफ क्रॉस करते हैं, वो क्रॉसिंग पॉइंट आपको टाइम भी देगा, वो क्रॉसिंग पॉइंट आपको पोजीशन भी देगा। जहां वो मिले थे वो एक ही पोजीशन था, खास पोजीशन था, और उन दोनों की घड़ियों में एक ही टाइम था। उन दोनों घड़ियों में जो दो आदमी मिले हैं, उनके दोनों जो घड़ियां थी, एक ही टाइम था। वो टाइम था T0 पर वो मिले और x0 पर के पोजीशन पर वो मिले। उस वक्त टाइम T0 था और उस वहां पोजीशन जो थे, वो पोजीशन वो x0 का पोजीशन था, मतलब कोई डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन था। अच्छा, यहां x0 लिखने से शायद आप ओरिजिन को यहां कंफ्यूज करोगे। चलो x प्राइम लिखो, इसमें x प्राइम पोजीशन पर वो मिलते हैं, यहां T प्राइम पर वो मिलते हैं, T प्राइम। They meet at a time T prime and they meet at a position of x prime. You understand the point? Because they meet in position, they meet in time. दोनों के एक ही पोजीशन पर वो मीट हुए और एक ही टाइम पर। जैसे कोई किसी को कहता है he met an accident, he was at a wrong place at a wrong time, he was at a wrong place at a wrong, he could have been at a wrong place at a right time, after some time he would have been there would not have been accident. तो उसमें टाइम और पोजीशन दोनों मिल जाते हैं दो आदमियों के लिए। चलिए, who overtakes the race? Who overtakes? जब after they meet, the B goes ahead. How do you know that B goes ahead?
हाउ डू वी नो दैट? ड्राई लाइन, एक इस टाइम पर पार्टिकल यहां है, पार्टिकल ए, बॉडी ए यहां है, लेकिन बॉडी बी आगे है। यहां मैं फिर से दिखाता हूं, हैव ए लुक, देखिए आगे टाइम लीजिए, ये टाइम लीजिए, ये टी डैश जहां वो मीट हो गए। आगे टाइम लेता हूं मैं, कोई टाइम आगे, ओके ये वाला टाइम लेता हूं, टी डबल प्राइम, उसमें क्या हुआ, ये और ये। टी डबल प्राइम पर, टी प्राइम से आगे जो टाइम हुआ, फॉरवर्ड टाइम, उस टाइम में ए का पोजीशन ये था, लेकिन बी का ये था। अब बी आगे है कि ए आगे है? बी तो आगे है, ऑरिजिन से ज्यादा दूर है, ए नजदीक है, सो बी आगे गया, सो बी ओवरटेक्स द रेस, बी ओवरटेक्स। इस क्वेश्चन के मैंने सारे आपको केसेस हल करके दिए, आप इसको कंसंट्रेट करो, इसको एक दो बार समझने की कोशिश करो, and I believe that you can solve other questions yourself. You have any problem, you can just write to me on my website, you can write to me on YouTube through comment section, and I finally request you to download my app, Tantray Physics Classes, where I deliver lectures and I load lectures there, and you give me your feedback, what you need in physics, and what problems you need, and what objectives you need, what concepts you have difficulty in. I'll be giving you lectures, anything, everything on my website, on the YouTube. You don't have to go anywhere. Stick to the program, stick to the lectures so that you could be benefited. Thank you.